नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th फिजिक्स में आज सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक दूसरी वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सुपरपोजिशन प्रॉब्लम्स में कुछ क्लासिकल टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स करके सब्जेक्ट को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करना जानते हैं। शुरू करते हैं। टू चार्जेस Q and minus Q of equal magnitude and opposite polarity are placed at two vertices A and B of equilateral triangle ABC. We have to find out electric field intensity at the third vertex C, center of this equilateral triangle O, center of this side AB where two charges are placed O dash, and center of this opposite side AC and point is O double dash. At third vertex, two charges of equal magnitude and having same distance position of observation point produce equal magnitude electric field. Positive charge Q of position A produce electric field EA on joining line outward, and negative charge minus Q at position B produce electric field EB on joining line inward as shown here, and both charge magnitude and distance of observation point from charge is the same. So electric field magnitude of charge A at position C and charge of position B at point C is the same, and it is given by KQ upon A square. Q is charge magnitude and A is distance of observation point. Now this inner angle of equilateral triangle is 60, so this outer angle is 120. Two equal magnitude at an angle 120 will produce resultant electric field just midway parallel to this AB line. The resultant electric field is EAB, and for 120 angle the resultant got same magnitude as equal individual vector components. So resultant electric field is KQ upon A square, and it is directed in EAB direction parallel to AB line as shown here. For this triangle center position O, electric field contribution of positive Q charge placed at A is on joining line outward EA, and similarly for negative Q charge positioned at B, electric field contribution at center point O is on joining line but inward EB as shown here. Now the distance of observation position from both charge and the magnitude of both charge is the same, so electric contributions are equal in magnitude. This angle between equal magnitude of two electric field intensity E and EB is 60 degree. To find out magnitude of EA and EB, we have to find out distance of center point O from vertices A or from vertices B, and AO and BO is equal in magnitude, and let this distance is x. Now this x distance is BO is 2/3 of BO dash, which is a perpendicular bisector on AC side, and if this AB dimension is A and this angle is 30, then BO dash is A cos 30, and this center divide this length in 2:1 ratio, so it is 2/3 of total length, and cos 30 is √3/2. Simplification will result this distance as A by √3, and if for Q charge distance is taken as A by √3, then electric field intensity as inverse square of distance becomes 3KQ upon A square. Both magnitudes are equal, angle is 60 degree, so resultant is midway EAB, and it is √3 times of single individual 3√3KQ upon A square. This configuration of equal magnitude and opposite polarity charge is known as electric dipole, and for this dipole at mid positions the distance from each charge is A by 2, and electric contribution is KQ divided by A by 2 whole square, or 4KQ upon A square, and both electric field contribution of positive charge joining line outward and for negative charge joining line and inward are in the same direction, equal in magnitude, so the addition of the two will give me resultant electric field 8KQ upon A square. For center point of side AC, that is O double dash, two charges, one of position A plus Q at a distance A by 2 produce electric field EA, and magnitude of EA is KQ divided by A by 2 whole square, or 4KQ upon A square. And for
For negative Q charge placed at position B, electric field contribution need this distance BO double dash, and BO double dash distance is A cos 30. This angle is 30, so this is A cos 30, and cos 30 is root 3 by 2. And at root 3 A by 2 distance from minus Q charge, electric field is inward directed towards negative charge, and it is 4 by 3 times KQ upon A square. Now these two electric field as directed here, EA and EB, are at 90 degree, and the resultant can be obtained by simple Pythagoras calculation. And Pythagoras results say that resultant electric field is square of first contribution and square of second contribution. First contribution is 4 times of KQ upon A square, and second contribution is 4 by 3 times KQ upon A square. KQ upon A square is kept common, and this square root calculation is performed by again taking 4 as common, and 1 square is 1 by 3 square is 1 by 9. When we take 9 as an LCM, it becomes 10 by 9, and square rooting will result as 4 root 10 by 3 KQ upon A square. एक समबाहु त्रिभुज A B C के दो शीर्ष A और B पर दो आवेश प्लस Q और माइनस Q एक समान मैग्नीट्यूड और विपरीत ध्रुवता के दिए हुए हैं, और हमें समबाहु त्रिभुज के तीसरे शीर्ष त्रिभुज के केंद्र O, ए और बी को जोड़ने वाली भुजा का मध्य बिंदु O डैश और सामने की भुजा AC के मध्य बिंदु O डबल डैश पर CO डैश और O डबल डैश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों के योगदान से क्या बनेगी, ये अध्यारोपण से ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीसरे वर्टिसेस C के लिए A स्थिति पर रखे हुए धनात्मक Q आवेश का विद्युत क्षेत्र EA जोड़ने वाली रेखा पर बाहर की ओर, और शीर्ष B पर रखे स्रोत ऋणात्मक Q आवेश का विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पर अंदर की ओर EB चित्रानुसार है। दोनों आवेशों के मान और दोनों आवेशों से परीक्षण स्थल की दूरी A एक समान है, तो दोनों के विद्युत क्षेत्र के जो परिणाम है E और EB के मैग्नीट्यूड हैं वो एक समान होंगे, और इस मैग्नीट्यूड को अगर हम E माने तो Q आवेश A दूरी पर विद्युत क्षेत्र KQ अपॉन A स्क्वायर बनाएगा। यहाँ समबाहु त्रिभुज का ये आंतरिक कोण 60 डिग्री है, तो ये बाह्य कोण 120 डिग्री होगा, और जब दो सदिश बराबर मान के होंगे तो उनका परिणामी सदिश EAB मध्य में AB के समांतर A से B की ओर यहाँ चित्रानुसार है, और इसका मान किसी एक सदिश के मान के बराबर होगा, तो परिणामी सदिश KQ अपॉन A स्क्वायर अध्यारोपण से बनने वाला विद्युत क्षेत्र बता रहा है। त्रिभुज के केंद्र बिंदु O पर A स्थिति पर रखे हुए धनात्मक Q आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जोड़ने वाली रेखा पर EA और स्रोत ऋण Q आवेश जो B स्थिति पर है उसका विद्युत क्षेत्र EB जोड़ने वाली रेखा पर अंदर की ओर प्राप्त हो गया है। दोनों आवेशों के मान और दोनों आवेशों के केंद्र बिंदु O से दूरी एक समान है, तो दोनों विद्युत क्षेत्र के मान समान होंगे, और ऐसी स्थिति में इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश एक बार फिर दोनों के ठीक बीच में इस AB रेखा के समांतर चित्रानुसार EAB होगा। EA और EB के परिणाम ज्ञात करने के लिए केंद्र बिंदु की किसी एक शीर्ष से जो दूरी जिसे हमने x माना है वो ज्ञात करनी होगी। दोनों शीर्षों से A से O की दूरी और B से O की दूरी एक समान है, और वो अगर x है तो वो किसी एक शीर्ष से सामने की भुजा पे जो लंब समद्विभाजक डाला हुआ है जैसे CO डैश उसको 2:1 में बांटने वाली दूरी है, तो वो कुल CO डैश दूरी का 2/3 अंश हो गया है। अगर ये भुजा A है और ये कोण 30 है तो CO डैश A cos 30 होगा, और A cos 30 का 2/3 गणना करने पे A बाई रूट 3 आ जाएगा। Q आवेश जो A और B पे रखा हुआ है वो A बाई रूट 3 दूरी पे केंद्र बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा वो 3KQ अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कोण इस पूरे कोण के अर्ध 30 डिग्री हैं, तो ये कोण 120 डिग्री हो गया। अगर अंदर का कोण 120 डिग्री है तो ये बाह्य कोण 60 डिग्री होगा। दो समान मान के सदिश अगर 60 डिग्री कोण पे हो तो उनका परिणाम जो ठीक मध्य में है EAB उसका मान किसी एक मान से रूट 3 गुना होगा, तो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र Q और माइनस Q आवेश से एक A भुजा के समबाहु त्रिभुज के केंद्र बिंदु पर 3√3 KQ अपॉन A स्क्वायर आ जाएगा। A पर रखा हुआ Q आवेश और B पर रखा हुआ माइनस Q आवेश का ये जो युग्म है वो एक विद्युत द्विध्रुव है, और इस विद्युत द्विध्रुव के ठीक मध्य में AB भुजा के मध्य बिंदु O डैश पर अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहें तो धनावेश का विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की तरफ EA, ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पे अंदर की ओर EB एक ही दिशा में एक समान मान के आएंगे। दोनों
आवेशों के मैग्नीट्यूड भी समान है, दोनों की परीक्षण स्थल से दूरी एक समान a/2 है। a/2 दूरी पर a और b का जो विद्युत क्षेत्र EA और EB आएगा वो आ जाएगा 4kq/a² और दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़कर हो जाएंगे 8kq/a²। तो हमारा O डैश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया है 8kq/a²। समबाहु त्रिभुज की दो शीर्ष A और B पर क्रमशः Q और -Q आवेश रखे हैं और ये जो तीसरी भुजा AC का मध्य बिंदु O डबल डैश है उस पर इस A पर रखे हुए धनावेश का विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की तरफ और उसी स्थान पर इस ऋणात्मक Q स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा में अंदर की तरफ EB हो गया है और चित्रानुसार ये दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं। तो एक पाइथागोरस कैलकुलेशन से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस सूत्र अनुसार प्राप्त हो जाएगा। अब हमें A आवेश का विद्युत क्षेत्र EA और B आवेश का विद्युत क्षेत्र EB ज्ञात करने के लिए स्रोत से परीक्षण स्थल की दूरी ज्ञात होनी जरूरी है। A आवेश से O डैश की दूरी a/2 है और a/2 दूरी पर Q आवेश का विद्युत क्षेत्र 4 गुना होगा kq/a² का। वहीं B बिंदु की O डबल डैश से जो दूरी है वो हो गई है A और ये कोण 30, तो a cos 30 और a cos 30 है √3/2a। तो √3/2a दूरी पर Q आवेश का विद्युत क्षेत्र आ गया 4/3 गुना kq/a²। अब अगर पाइथागोरस कैलकुलेशन करते हैं तो हम 4 और kq/a² को कॉमन ले लेते हैं और ये 1 का स्क्वायर 1 और 1/3 का स्क्वायर 1/9, एलसीएम लेने पर 10/9 और 10/9 का वर्गमूल लेने पर √10/3 4 गुना, तो 4√10/3 kq/a² हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया इस स्थिति में O डबल डैश पे। लेट्स टेक अनदर simple calculation on superposition. We have given a square and on 4 vertices of it charge plus q plus 2q minus 2q and plus 2q are placed and we have to find out resultant electric field at the center of this square and it is given that center point got at distance d from any vertices. Since electric field intensity is a vector quantity, so for superposition calculation direction first rule is important and electric field of this positive q charge EA is on joining line outward, of B again a positive charge on joining line outward, for C which is a negative charge it is on joining line inward, and for D which is positive charge electric field is on joining line outward. So these EA, EB, EC and ED are respectively electric field direction of 4 charges. The resultant electric field is vector summation of these 4 individual contributions. Now here it is easy to consider electric effect of opposite vertices of square like A and C and B and D, and we found that electric field contribution of B and D are opposite and A and C are in the same direction, so they will get just added up and they will be straightforward subtracted. Since electric field contribution of this plus 2q charge and this plus 2q charge with the same distance is in the amount same, it is k 2q charge and distance D inverse square equal and opposite, so EB and ED result will become 0. Similarly, electric contribution of EA and EC in the same direction will added up to give me resultant electric field. So resultant electric field is simple summation of electric field contribution of A position charge at D distance and C position magnitude 2q at D distance, and resultant is 3kq/a² directed in A to C direction at point O. इस उदाहरण से सुपरपोजिशन अध्यारोपण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं तेजी से कैसे गणना की जाती है ये समझ में आ जाएगा। हमें एक वर्ग ABCD दिया हुआ है जिसके 4 शीर्षों पर प्लस Q प्लस 2Q माइनस 2Q और प्लस 2Q आवेश रखे हैं और केंद्र बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है इसलिए दिशा पहले देखना एक नियम है। तो A के प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र EA जोड़ने वाली रेखा पर बाहर की तरफ, B के धनावेश का भी विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पे O बिंदु से बाहर की तरफ EB आ गया है। इसी तरह से C जो ऋणावेश है उसका विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा में C की तरफ अंदर की ओर आ गया है और D का प्लस 2Q आवेश का विद्युत क्षेत्र ED जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की तरफ आ गया है। ये जो चारों विद्युत क्षेत्र EA, EB, EC और ED आए हैं इनका सदिश जोड़ हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। अब यहाँ सबसे पहले ये जो आमने सामने के शीर्षों के आवेश हैं उनके विद्युत क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो A और C दोनों के विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में सीधे जुड़ जाएंगे। वहीं B और D का विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ घटाव होगा और B और D दोनों पे आवेश के मान समान है, दोनों की दूरियां परीक्षण बिंदु की समान है, तो दोनों
दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर मान के विपरीत दिशा में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और ये गणना हम सहजता से भी कर सकते हैं कि इन दो आवेशों की बजाय हम एक परिणामी आवेश किसी भी शीर्ष पर दोनों के अंतर के बराबर मान सकते हैं। तो अगर इस 2q में से दूसरा 2q घटाएं तो किसी भी शीर्ष पे जो परिणामी विद्युत प्रभाव है वो 0 आवेश का शून्य हो गया है, जैसा कि इन सदिश चित्र में भी दिख रहा है। बराबर और विपरीत मान के विद्युत क्षेत्र तीव्रता घटक निरस्त हो जाएंगे और अब ए का और सी का योगदान एक ही दिशा में जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र सरल सिंपल गणित से आ जाएगा। ए के क्यू आवेश का डी दूरी पर विद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन डी स्क्वायर और सी पर रखे हुए 2q आवेश का विद्युत क्षेत्र 2 के क्यू अपॉन डी स्क्वायर जुड़कर 3 के क्यू अपॉन डी स्क्वायर मेरा परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इस गणना को भी हम सहजता से कर सकते हैं। ए पर रखे क्यू आवेश में से अगर मैं -2q घटा दूं तो 3q का प्रभाव जो ओ बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बनाएगा 3 के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, वही दोनों का रिजल्टेंट होगा। मैं यहाँ ए में सी को घटाने की बजाय सी में से भी ए घटा सकता था और -2q में से जब मैं +q घटाता हूं तो यहाँ -3q परिणामी इन दोनों का अगर मानूं तो -3q का सी बिंदु पर रखने पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो 3 के क्यू अपॉन डी स्क्वायर अंदर की तरफ यहाँ दिखा देगा। तो विपरीत शीर्षों पर रखे हुए आवेशों में दो आवेश की बजाय एक आवेश अंतर के बराबर ले सकते हैं और ये सम्मिति हम षटभुज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम। फॉर ए स्क्वायर एट ऑल vertices identical amount of charge are placed and we have to find out a suitable center charge amount which will produce equilibrium of this 5 charge configuration. For equilateral configuration identical amount of charge, then at this symmetrical center position resultant electric field is always 0. So charge of any amount placed at O remains always in equilibrium. Let's calculate equilibrium condition for charge of position D. So for this charge of A position make a repulsive force Fa and similarly repulsive force of charge of position B and C is Fb and Fc on joining line outward as shown here. For square of side A, electric force of 2q charge at a distance A is kq square upon A square. So force of B charge and force of C charge on this charge of D position is kq upon D square. Let's call this force as F. Now position D and vertex A got a distance √2a and force of A on this q charge is kq square upon √2a whole square and it is F by 2 half of other two forces. Now if we see these three forces Fa, Fb and Fc, it is easy to find out resultant of Fc and Fa which is equal of magnitude and having 90-degree angle. So resultant is √2 times and midway, so it is √2f resultant of force B and C and this resultant is in the same direction as of force of A position. So the total force of A, B and C q charges is summation and this summation is 2√2 plus 1 by 2 kq square upon A square. Now to produce similar amount of force opposite will make equilibrium condition for this q charge and this could be produced by a negative q charge placed at center position because negative charge will attract this positive q charge and if the two forces are equal and this center to vertex distance is A by √2, so equality will results in k small q and A square will get cancel out and this square become 2 at numerator and when we side change it goes to denominator side and 2 multiplied by 2 become 4 and capital Q got this magnitude. If we place such magnitude at center, all 5 charges remains in equilibrium and if center charge got a magnitude higher than this, then all 4 charges will come to this central charge position and this center charge position will remain at center position and if this magnitude is smaller than this magnitude, then this will remain here it is and these 4 charges if left free will go to infinity. एक बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी से परिपूर्ण पाठ्य पुस्तक समस्या को हल करते हैं। हमें एक वर्ग के 4 शीर्षों पर एक समान QQ आवेश रखे हैं और हमें केंद्र बिंदु पर उस उपयुक्त ऋण आवेश का मान ज्ञात करना है जो इस 5 आवेशों के तंत्र को साम्य स्थिति में बनाए रखे। हमें मालूम है कि किसी भी समभुज के अगर सभी शीर्षों पर एक समान आवेश होते हैं तो सममित केंद्र स्थान पर परिणामी विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। तो ये जो केंद्र बिंदु का आवेश है वो किसी भी मान के लिए यहाँ साम्य स्थितियों में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि इस पे परिणामी बल शून्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता होने के कारण शून्य है। हमें इसके किसी एक उपयुक्त मान से इन तीनों आवेशों से किसी एक आवेश पे जो परिणामी प्रतिकर्षण आ रहा है उसके बराबर और विपरीत दिशा में इस ऋण आवेश से आकर्षण बनाना है ताकि ये सम्मित तंत्र 5 आवेशों का साम्य स्थिति में बना रहे। अब यहाँ इस डी स्थिति पर रखे हुए आवेश पर ए स्थिति के आवेश का विद्युत बल प्रतिकर्षण जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की तरफ
FA है, इसी तरह से B और C के रखे हुए आवेशों के बल FB और FC प्रतिकर्षण प्रकार के और बाहर की तरफ हो गए। D स्थिति की B और C से दूरी A है। Q आवेश का A दूरी पर दूसरे Q आवेश पे जो विद्युत बल लगेगा कि Q²/A² वो B का और C का रखे आवेश का एक समान होगा, माना वो F है। ये जो D बिंदु की A से दूरी है वो √2a हो गई है और √2a दूरी पर A स्थिति के आवेश का D स्थिति के Q आवेश पे बल Q²/2a² F/2 हो गया है। और अगर हम इन तीनों बलों का सदिश योग करें तो पहले B बल और C बल का योग FBC देखें, दोनों बल बराबर मान के परस्पर 90 डिग्री कोण पे हैं, तो परिणामी बीच में और किसी एक से √2 गुना होगा। और ये जो B और C का परिणामी है वो एक ही अगर समान दिशा में है तो ये सीधे सरल जोड़ से A, B और C तीनों आवेशों का परिणामी बल जो बाहर की तरफ बन रहा है वो ज्ञात हो गया है 2√2 + 1/2 kq²/a²। अब इस -q से स्मॉल q पे a/√2 दूरी पर जो आकर्षण का बल है वो इस बल के बराबर बना देते हैं, तो पांचों आवेशों का ये जो सममित तंत्र है वो साम्य स्थिति पे बना रहेगा। √2 का स्क्वायर यहाँ अंश में 2 आएगा, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो यहाँ हर में 2 से गुणा होके 4 हो जाएगा और हमारे कैपिटल Q का मान 2√2 + 1/4q आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इसकी प्रवृत्ति इन चारों आवेशों से विपरीत है, तो हमारा आंसर हो गया ये पीली हाईलाइट। लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम। 3 identical Q charge are placed at 3 vertices of an equilateral triangle. What is resultant electric field at any vertex by this configuration and what is resultant force on that charge? We have to calculate. And what should be a suitable value of negative charge at center position so that this system of 4 charge symmetrical configuration remains in equilibrium. For electric field intensity calculation at vertices C, the charge placed at this position is treated as test charge and its own contribution in electric field is considered at 0. So 2 charge of vertex A and B produce electric field on joining line outward EA and EB as shown here, and Q charge at a distance A has produced electric field kq/a². Two electric contributions are equal in magnitude and got 60 degree angle between them. Then the resultant of these two is midway and √3 times of 1. So resultant electric field at position C is √3 times kq/a². Now in this electric field, when we place this Q charge of vertex C, that charge would have a force QE equal to √3 times kq²/a². For equilibrium condition of this charge Q placed at position C, we have to produce resultant electric field 0. So an additional electric field by this center charge is required, which is equal and opposite to this EAB electric field, so that resultant electric field of position C becomes 0 and force on this charge becomes 0. So two charges of vertex A and B has produced an electric field √3 times kq/a² at position C, which has produced a force on C charge √3 kq²/a². And for equilibrium of this charge, we need another electric field by this negative Q charge equal and opposite to this EAB electric field, and let that electric field is EQ. And for EQ calculation, we need distance of vertex C from center CO. CO distance is 2/3 of CO dash, and CO dash is A cos 30, and calculation will result as A/√3. So this Q charge at A/√3 distance produce an electric field magnitude which is equal and opposite to EAB electric field, and EAB electric field is √3 kq/a², and equality relation will fetch us a result of capital Q magnitude as Q/√3, and it should have a negative polarity. एक और ज्ञानवर्धक समस्या के साथ इस वीडियो लेसन की समाप्ति करते हैं। हमें 3 समान मान के Q आवेश एक समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर दिए हुए हैं। हमें इन आवेशों की उपस्थिति के कारण किसी एक शीर्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है और उस शीर्ष पर रखे हुए आवेश पर क्या परिणामी बल है ये गणना करनी है, और फिर केंद्र बिंदु O पर एक ऐसा उपयुक्त आवेश प्राप्त करना है कि ये चारों आवेशों का तंत्र तीनों शीर्ष पर रखे हुए Q आवेश और केंद्र पर रखा हुआ वो चौथा आवेश साम्य स्थिति में बने रहें। त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर Q आवेश रखे हैं और किसी एक शीर्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने पर इसी शीर्ष पर रखे हुए आवेश को हम परीक्षण आवेश मान लेंगे और इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र में योगदान नगण्य मानते हुए शेष अन्य आवेशों के विद्युत क्षेत्र घटक अध्यारोपित करके परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ए स्थिति का Q आवेश जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की तरफ EA और बी स्थिति का Q आवेश जोड़ने वाली रेखा पर धनावेश बाहर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र EB बनाएगा। दोनों Q आवेश A दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र योगदान देंगे EA और EB वो मान में बराबर kq/a² है, और ये कोण 60 डिग्री होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के बीच में EAB किसी एक मान
मान का √3 गुना होगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो सी शीर्ष पर बनेगा ए और बी के आवेशों से, वो √3 टाइम्स KQ/A² है। और इस विद्युत क्षेत्र में सी शीर्ष का Q आवेश QE बल अनुभव करेगा, तो किसी भी वर्टेक्स पर रखे हुए आवेश पर √3 टाइम्स KQ²/A² बल बाहर की तरफ उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम इसी विद्युत क्षेत्र के बराबर मान का और विपरीत दिशा का कोई विद्युत क्षेत्र केंद्र पर रखे हुए आवेश से प्राप्त करने, और ये अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र तभी बनेगा जब हम केंद्र पर एक ऋण आवेश रखेंगे, और अगर ये दोनों विद्युत क्षेत्र परिणाम में बराबर हो तो सी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर शून्य हो जाएगा, तो सी पर रखा हुआ आवेश शून्य बल स्थिति में साम्य स्थिति पे रहेगा। और इस -Q आवेश पे शीर्ष पर रखे हुए तीनों Q आवेशों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो सममित स्थिति के कारण शून्य है, तो ये भी आवेश साम्य स्थिति पे रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 Q आवेशों के कारण इस तीसरे शीर्ष पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र √3 KQ/A² था, उसमें इस आवेश पे जो बल लग रहा था √3 KQ²/A², उसे संतुलित करके हम C की साम्य स्थिति देखेंगे। और C की साम्य स्थिति के लिए A और B के परिणामी विद्युत क्षेत्र के बराबर विद्युत क्षेत्र केंद्र बिंदु पर रखे हुए ऋण आवेश -Q द्वारा बनाना है। इस विद्युत क्षेत्र गणना के लिए हमें शीर्ष से केंद्र की दूरी CO ज्ञात करनी है। शीर्ष से सामने की भुजा पे जो लंब खींचा जाता है CO', वो A, और ये कोण अगर 30 डिग्री है तो वो A cos 30 है, और ये जो लंब है वो 2:1 के अनुपात में केंद्र बिंदु O से विभाजित हो रहा है। तो केंद्र की किसी एक शीर्ष से जो CO दूरी है वो CO' अभिलंब की कुल दूरी का 2/3 है। CO' A cos 30 का मान √3/2 हल करने पर शीर्ष की केंद्र से दूरी A/√3 आ गई है, और एक केंद्र पर रखा हुआ Q आवेश A/√3 पर जो विद्युत क्षेत्र EQ बना रहा है वो अगर मान में EAB के मान के बराबर और दिशा में विपरीत हो जाता है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य की स्थिति बन जाएगी, और ऐसी स्थिति में सभी चारों आवेश साम्य स्थिति में रहेंगे। √3 का वर्ग ऊपर 3 आएगा, दिशा जब हम साइड बदलेंगे तो वो जब भाग देंगे तो कैपिटल Q का मान Q/√3 और प्रवृत्ति विपरीत, तो हमारा जो केंद्र आवेश -Q/√3 मान के लिए चारों आवेशों के इस तंत्र की साम्य स्थिति बना देगा। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो में परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का ये अभ्यास आपकी सफलताओं में भारी मददगार रहेगा, और इसी तरह के दूसरे परीक्षा प्रश्न भी आप बहुत आसानी से, सही और तेज गति से कर पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं इतनी ही खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।